Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Tech. Today we'll discuss the human geography culture part 2. In the last lectures we have discussed the questions of what are local and popular cultures. Today we will discuss the how are local culture sustains, and in the upcoming lectures we will discuss how is popular culture diffused, and the last one is how can local and popular culture be seen in the cultural landscapes. So let's see guys, हाउ आर लोकल कल्चर सस्टेन्स। देखो किसी भी कल्चर को इधर इट इज द पॉपुलर कल्चर और इट इज द लोकल कल्चर्स, बट लोकल कल्चर को चलाने के लिए, लोकल कल्चर को परसिस्ट कराने के लिए, उसकी रिलीवेंस उसको रखने के लिए, उसको सस्टेन कराने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट सम मेथोडोलॉजी, सम एक्शंस। और कैसे हम लोकल कल्चर को सस्टेन्स करते हैं वी विल लुक एट। During the 1800 or into the 1900s, when the US government had an official policy of assimilations in order to make American Indians into the Americans rather than the Indians. तो 1800s से 1900s का जो वर्ड देखोगे, not in the American only, it is in the whole Europe, or in the Australia, on the New Zealand. The government, what the government has done, that the Canadian, Australian, Russians and other colonial power adopted the similar policies towards indigenous peoples, using schools, churches, government agents to discourage native practices or to assimilate them into the popular cultures. How assimilations policies become fatal. Today, several churches, governments have apologized for the assimilation policies के लिए. In 2008, the government of Australia and Canada even each officially apologized to their indigenous population, क्योंकि हमने ये सब काम बहुत ही गलत किया, ठीक है. तो because it completely killed the rich and the diverse and vibrant culture of the indigenous peoples. क्योंकि कहीं कहीं जो लोकल कल्चर्स होता है, लोकल कल्चर से कहीं ना कहीं एस्थेटिक वैल्यूज, देयर रिलीजन, देयर प्रैक्टिस, दे हैव ना कहीं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। और जब आप लोकल कल्चर को इनटू द पॉपुलर कल्चर में आप डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो यू आर लूजिंग योर रिच एंड रिच जो डाइवर्स एंड कल्चर्स है, आप उसकी एक तरीके का आप कह सकते हो कि इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स है आपकी, आप अपने इंटेंजिबल असेट्स को कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हो। How local culture sustain itself? लोकल कल्चर अगर जब अपने आप को सस्टेन करती है तो जो ग्रुप्स होते हैं, जो इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, वो कैसे अपने आप को सस्टेन करते रहते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कस्टम्स। तो कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स इज एन अ प्रैक्टिस दैट ग्रुप ऑफ पीपल्स रूटीनली फॉलो, और इट कैन बी इन द लाइक हम जैसे हमने फोक कल्चर्स में देखा था, इधर इन द लोकल कल्चर में भी सेम होता है। तो वो चाहे हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू करें, इधर हम द कम्युनिटी प्रोग्राम्स के थ्रू करें, या अदर थिंग्स में करें, तो कैसे कर सकते हैं? पीपल्स हैव कस्टम्स रिगार्डिंग ऑल पार्ट्स ऑफ देयर, जैसे हमने कल्चर्स को देखा, कल्चर्स कैसे होते हैं? रिलीजन तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करेंगे। फिर जैसे फूड्स के थ्रू, फूड्स हैबिट्स क्या होते हैं? उनको फूड्स हैबिट मेंटेन रखते हैं, वो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड डांसिंग एंड स्पोर्ट्स, एवरी मोमेंट्स पे जहाँ पे उनको मौका मिलता है, they have distinctness, they have uniqueness, they maintain them through their practices. The customs changes in small ways over the times, but they maintain despite the onslaughts of the popular culture. Researchers Simon Harrison एक popular researchers था on the local cultures पे, इसने recognize किया कि जो local cultures groups है वो purposefully क्या करते हैं and often fervently define themselves as unique and creating a boundaries around them, their cultures, and distinguish themselves from the other local cultures. तो local culture not protect from the other जो popular culture है, but they also protect themselves from the other local culture. तो local culture के बीच में भी diffusion से अपने आप को बचाते हैं। What are local cultures के goal? Local cultures के गोल क्या होते हैं? दो ही गोल होते हैं लोकल कल्चर्स के, कीपिंग दैम कल्चर आउट, कीपिंग अदर कल्चर्स आउट, और कीपिंग देयर आउन कल्चर्स इन। तो इनके दो ही गोल होते हैं, दूसरी कल्चर्स को भगाना और अपनी कल्चर्स को इन करना, मतलब अपनी कल्चर्स को सस्टेन करना थ्रू दी कस्टम्स प्रैक्टिसेस। What is cultural appropriations? It is a very important term है
कल्चरल अप्रोप्रिएशन। कल्चर अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच अदर कल्चर अडॉप्ट कस्टम्स एंड नॉलेज एंड यूज देम फॉर देयर बेनिफिट्स के लिए। और यहीं से कंसेप्ट आता है कल्चरल कोमोडिफिकेशंस। कल्चर कोमोडिफिकेशन में क्या करते हैं? जो भी एस्पेक्ट्स है कल्चर से रिलेटेड, लाइक द मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट, उनका कोमोडिफिकेशंस कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो यहीं से हैरिसन ने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि that culture appropriation is a major concern for local cultures because peoples outside the local cultures often prioritize the cultural knowledge of local cultures, including their natural pharmaceuticals or musical expressions or something else, to accumulate wealth and prestige. Means these are associated with the local cultures, that these have their traditional knowledge, but the business persons, the enterprises होते हैं, for their benefit use them, their local culture knowledge को, their traditional knowledge को. So around the world, local culture desire to keep popular culture out and keep their culture intact and maintain control over the customs and knowledge. रूरल लोकल कल्चर्स और अर्बन लोकल कल्चर्स के दो कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे। रूरल जो लोकल कल्चर्स होते हैं, इनको सस्टेन करना इज एन इजी टास्क। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज में जो लोकल कल्चर्स है वो पहले से ही आइसोलेट्स में है। दूसरी चीज क्या है? लिविंग टुगेदर है, यहाँ पे फैमिली सिस्टम चलता है, तो फैमिली स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो अपने उसको मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? दे आर हैव एन इनफ टाइम इन आइसोलेशन। दैट इज द वेरी बिग thing for any culture to sustain themselves. So in a rural areas, member of local cultures can more easily keep external influence on the outside. For example, like एक एनाबैप्टिस्ट ग्रुप है। एनाबैप्टिस्ट ग्रुप क्या थे? एनाबैप्टिस्ट और बैप्टिज्म, ये क्या था? जो कैथोलिक जो चर्च थे, रोमन कैथोलिक चर्च, दे दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द चाइल्ड बैप्टिज्म जिसको बोलते हैं, बट एनाबैप्टिज्म जिसमें अडल्ट बैप्टिज्म की प्रैक्टिस होती है, हम देखेंगे उसको। तो एनाबैप्टिस्ट ग्रुप्स ने क्या किया, सच एज हैट्रीज, एमिस, मिनोनाइट्स, लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ साउथ डकोटा, पेनिसिल्वेनिया एंड वर्जीनिया इन यूएसए में रहते हैं ग्रुप। For the past 5 centuries, Anabaptist group have migrated to rural areas beyond these 3 states. तो वो अपने आप को concentrated कर रहे हैं रूरल एरियाज में। क्यों? To protect themselves, to make a boundary, एक isolated boundaries around them, to no, ताकि वो जो कल्चर एप्रोप्रिएशंस है, कल्चरल डिफ्यूजन्स है, पॉपुलर कल्चर, उसको बचाने के लिए। केस स्टडी को देखते हैं कि व्हाई एनाबैप्टिस्ट ग्रुप्स हैव माइग्रेटेड टू रूरल एरियाज। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये क्या है? बैप्टिज्म, जो रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रैक्टिस करना चालू किया। बट एनाबैप्टिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे प्रैक्टिस इवन अडल्ट बैप्टिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन का जो पीरियड था, एनाबैप्टिस्ट ब्रोक फ्रॉम दम बोथ, जो कैथोलिक चर्च थे और न्यू जो प्रोटेस्टेंट जो चर्च थे, उनसे उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। तो ड्यू टू द अडल्ट बैप्टिज्म एंड द पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म एंड ब्रोक फ्रॉम द स्टेट एज वेल, उन्होंने पैसिफिज्म की पॉलिसी ले ली, स्टेट से भी अपने आप को अलग कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो एनाबैप्टिस्ट ग्रुप थे वो लगातार उन्होंने जो है प्रोसिक्यूशन फेस किया अपने से, पर क्योंकि दे हैव डिस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ देयर assertions ऑफ देयर नेसेसरी ऑफ अडल्ट बैप्टिज्म, रिजेक्टिंग द इन्फेंट बैप्टिज्म प्रैक्टिस बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। तो ये परसिक्यूशन लगातार फेस कर रहे थे, तो दे माइग्रेटेड देमसेल्व्स इन दी एक आइसोलेटेड रूरल एरियाज में। द मका अमेरिकन इंडियंस, मका अमेरिकन इंडियंस को भी एक गुड एग्जांपल्स है, जो हाउ लोकल कल्चर्स दे सस्टेन लोकल कल्चर्स। दे रीइंस्टेटेड द व्हेल हंट, क्योंकि क्या हुआ है कि बेसिकली ये जो वेल मछली होती है, वेल फिश होती है, इसका हंटिंग कर देते हैं, और ये हंटिंग करना एक उनका एक कल्चरल प्रैक्टिस था। ठीक है, तो मका हंटेड वेल्स फॉर 1500 years, बट यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया इन 1920 में, बिकॉज ऑफ देयर एंडेंजर्ड नेचर्स, तो उनको बैन कर दिया गया। बट अगेन इन 1994 में क्या हुआ है कि जब नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन ने उसको रिमूव किया, द ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ग्रे वेल्स को फ्रॉम द एंडेंजर्ड लिस्ट से, तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को दोबारा से फिर क्या कर दिया, शुरू कर दिया। लिटिल स्वीडन इन यूएसए, आप देखोगे क्या है कि फाउंडेड बाय द स्वीडिश ल्यूथरन्स ने इन 1869 में ये फाउंड किया। तो जियोग्राफर स्टीव स्नेल ने क्या बोला कि आस्क व्हाई ए टाउन ऑफ 3300
which is a few decades ago had little or no sign of Swedishness on its landscape, but it transformed itself into a place where Swedish culture is celebrated every day in gift store, on main street, and in buffets in restaurants. So in the 1930s, the town people shared stories about the role of the Swedish in the American history and the importance of their Swedishness to Lindsborg. So from that base, the townspeople began to celebrate their Swedish heritage in 1950s and highlighted the everyday existence, the local cultures of the Swedish who might immigrated to the Lindsborg. To refers to this as a new localism, seeking out the regional cultures and reinvigorating it in response to the uncertainty of the modern world. The peoples of the Lindsborg seeks to celebrate Swedish immigrants who made the place unique and connect with other around them. Urban local culture क्या होता है कि some local cultures have successfully built a world apart, a place or to practice their customs within a major city by the constructing the tight knit ethnic neighborhoods. Hasidic Jews in Brooklyn, New York, Italian American in the north end of the Boston and Massachusetts में maintain their distinct local culture in urban environment. तो urban local culture में भी क्या होता है कि urban environment में भी local culture ने अपने group बनाए हुए हैं, ethnic group है, उन्हीं में वो रहते हैं क्योंकि group एक बहुत जरूरी चीज है. आप देखोगे कि किसी भी कल्चर्स को सस्टेन करने के लिए ग्रुप का होना है. इंडिविजुअल्स कैन नॉट सस्टेन देमसेल्फ ना. लोकल कल्चर एंड कल्चरल एप्रोप्रिएशन. Anthropologists and geographers ने ये study किया कि how others are using the local cultures, knowledge, customs, and even their names. For example, the state of the crazy horse. a Lakota Indian leaders जो था shew a brewery that produce crazy horse beer. तो ये crazy horse beer क्या था? एक local कल्चर्स के नेम से वहां से ड्राइव किया गया और वो एक बियर का नाम ड्राइव करता था. तो हाउ दे एप्रोप्रिएशन किया उन्होंने, कल्चर्स एप्रोप्रिएशन. What is commodifications? The process through which something, a name, a goods and ideas, or even a person names that previously was not regarded as an object to be bought or sold become an object that can be bought, sold and traded in the world market is called commodification. तो कहीं आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन, जब किसी का आप कोमोडिफिकेशन, आप कॉमोडिटी में जब किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो कल्चर्स को, उसको कोमोडिफिकेशन हम बोलते हैं. हाउ कोमोडिफिकेशन अफेक्ट द लोकल कल्चर? Their material cultures, they like their jewelry, their clothing, their food, their games, can be modified by themselves or by non-members. So their non-material culture, like their religions, their language, beliefs, and can be commodified often by non-members selling local स्पिरिचुअल एंड हर्बल क्योर्स फॉर द एलिमेंट्स. क्यों ऐसा क्यों होता है कि लोकल कल्चर के नाम पे ज्यादा चलता है? क्योंकि पॉपुलर कल्चर इतना ज्यादा नहीं, पर लोकल कल्चर से क्या होता है, आदमी जो पीपल्स है दे आर स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. वो जब लोकल कल्चर्स को देखते हैं तो उनकी जो नजर होती है वो कहाँ पे जाती है? बिल्कुल नेचुरलाइजेशन पे जाती है. नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स पे जाती है. पहाड़, नेचुरल ब्यूटीज, नो हर्बल प्रोडक्ट्स, नो आयुर्वेदा उसकी तरफ एक जाता है. तो इट इज बिकॉज एन ऑथेंटिक इमेज इधर टू प्लेसेस और द गुड्स अटैच है, तो इसलिए उनका कमोडिफिकेशन बहुत ज्यादा चलता है. थैंक यू गाइस, थैंक यू, वेलकम.